अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित की जाए। ये तो बोलना पड़ेगा ना। मैं बोल रहा हूँ। हाँ, पहले आप बोलो फिर मैं बोल दिया ये तो मैंने। अच्छा, बस वो बोल रहे हैं। हाँ, बोल दिया मैंने। करिए। नहीं, आपको बोलना पड़ेगा ना। मैंने बोल दिया। अब श्रीमती किरण चौधरी विधायक इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। हाँ, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित की जाए। अब आप बोलो। प्रस्ताव है कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित की जाए। प्रश्न है कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। ना पक्ष की जीत हुई। हाँ, देखिए हमने अलाउड ये क्यों कहे? हाँ जी, नहीं वो कहना नहीं चाहिए था उनको। जो आप समझिए, ये तो हाउस के अंदर हमने तय कर लिया कि 2 घंटे चर्चा होगी इसके ऊपर। हाँ। तो अब चर्चा शुरू करिए आप। तो आप जीत और हार कह रहे हो ना। अब श्रीमती किरण चौधरी विधायक अपना स्थगन प्रस्ताव पढ़ेंगे। गलती से हो गया। गलत करनी है ना, ये लिखा होगी। अध्यक्ष जी, ये एक बहुत ही अहम मसला है जिसको ये काम रोको प्रस्ताव के जरिए हम लेकर आ रहे हैं। आज सारा हरियाणा हमारी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। जो हालात हुए हैं वो सबके सामने हैं। पहले तो चोरी होती थी, अब खुलेआम सीना चोरी। अब खर्ची पर्ची हो गई पुरानी, नौकरी के लिए चलेगी नोटों भरी अटैची। ये हालात जो हैं हस्पद पूरे के पूरे हरियाणा के होंगे। आई विल नाउ रीड द हाँ जी, जमीनी। अब बात ये है ना, ये जमाने वाली बात ही नहीं है। पैसा ऐसा है कि अटैची राइम नहीं करती उसके साथ। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन अटैची राइम नहीं करी। क्या करें अब? कहाँ खर्ची और पर्ची, कहाँ अटैची? ये तो बहुत अंतर है। खैर अध्यक्ष जी, आई स्टार्ट माय दिस थिंग। अध्यक्ष जी, ये आपने कहा है मेरे को पढ़ने के लिए, मैं पढ़ रही हूँ। Recently, Haryana has been in the news for all the wrong reasons. The state has been rocked by the State Vigilance Bureau raids discovering Machiavellian manipulations and venal corruption in the HPSC and HSSC. Premier agencies making recommendations for recruitments for public employment in Group A, Group B, C and D posts in all departments of the government. So far, the government response is too little and too late. It is a ploy to net in the small fish and save the big crocodiles in the game. Since the pristine purity of any selection process of candidates for public employment is of utmost importance and utmost public interest, and the Haryana government unfortunately, seems hell-bent on saving the guilty for reasons best known to them, hence I present this present motion. Mr. Speaker, sir, the fact matrix that it is in public domain through news agencies and news reports is astounding. A deputy secretary rank officer of the HPSC, no less, is nabbed and arrested by the State Vigilance Bureau after an insidious network of conduits and middlemen are found taking huge cash from aspiring candidates amounting to rupees 20 lakhs per candidate for clearing the preliminary exams of the HCS and varying amounts for clearing of the exams for class 2 posts and other ranks. One of these conduits, allegedly having links with the private firm, recently entrusted the job of online evaluation of OMR sheets by the HPSC, handed over cash amounting to rupees 1 crore to the above mentioned deputy secretary in his office, and when he was caught red-handed and arrested by the State Vigilance Bureau, the SVB investigations unearthed a large number of blank OMRs or answer sheets pertaining to various exams and screening tests conducted not only by the HPSC, HCS and dental surgeon exams,
but also the HSSC, staff nurses, BLDAs and A&M exams. This shows, Adhyakshji, how well entrenched the system, the insidious, I would say, network of this Deputy Secretary and his middlemen was. This throws to toss the no parchi no kharchi narrative of the state government, exposing the hideous reality lurking beneath the thin veneer of attractive packaging. Adhyakshji, Mr. Speaker, sir, whatever details are percolating to us through news reports are very disconcerting. There was no sanctioned post of Deputy Secretary, HPSC and SCS cadre. I am asking point-wise questions, Adhyakshji, and I would like the opposition treasury benches to answer them the way I have asked questions to bilkul sateek mere ko jawab iske dein. When there was no sanctioned post of Deputy Secretary, HPSC and HCS cadre, and when there was already a 2005 batch IS officer looking after the post of Secretary HPSC, so how did a relatively junior HCS officer of 2016 batch come to be posted as Deputy Secretary HPSC against a non-existent post? Iska jawab dijiyega. Why was he entrusted the confidentiality branch pertaining to the conduct of exams by bypassing the secretary HPSC? जो senior officer है उसको bypass करके सारा कुछ इनको दिया गया. If the entire 2004 batch of HCS was not allowed to join by the previous government on the basis of an adverse and incriminating SVB state vigilance report holding the selection process tainted, why did the present government allow the Deputy Secretary above mentioned to join out of this batch for a few others? इसी को क्यों join करवाया गया? बाकी सारे tainted बनाए गए और इन्हीं को join करवाया गया. Why and at whose behest the present private firm has been entrusted the responsibility of online evaluation of OMR sheets in the HPSC? ये जो है किसने इस कंपनी को जो है ये अख्तियार दिया ये OMR शीट्स का? कैसे ये कंपनी को लिया गया? जब ये कंपनी को हटा दिया गया था, पुराने HPSC चेयरमैन ने हटा दिया था, फिर दोबारा से इस कंपनी को लिया गया, इसका भी जवाब दें. If the conduits who were collecting money have a nexus with this firm, what steps, if any, have been taken to blacklist this firm? क्या steps करे हैं कि blacklist इस firm को करने के? Why the government is not taking steps to scrap all exams conducted by HPSC and HSSC, pertaining to which a large number of blank OMR sheets have been recovered by the SVP from the office of the Deputy Secretary HPSC? तो ये क्यों नहीं ये exams को खत्म करा गया? Why Chairman HPSC, Chairman HSSC, Secretary HPSC, Secretary SSC have not been associated with the investigation by the State Vigilance Bureau? ये कहा गया कि जो इनके जो सीनियर ऑफिसर हैं वो अपने आप को रिक्यूज कर गए कि मैं इसमें नहीं लूंगा, मैं पर्सनल रीजन के कारण मैं नहीं कर सकता. तो हमें बताएं क्या पर्सनल रीजन थे? क्या उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था ये गंदगी करने के लिए? इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, why did the trail of investigation stop at the door of the Deputy Secretary HPSC? ये जो है सारा का सारा सिलसिला जो है अनिल नागर जी को जो है उठा के डिसमिस कर दिया, बाहर कर दिया. इनका डिसमिसल ऑर्डर जो है वो मैं पढ़ना चाहती हूँ. अध्यक्ष जी, डिसमिसल ऑर्डर में आर्टिकल 320 जो है उसको कोट करा गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें कहा गया है, whereas the matter was referred to the Haryana Public Service Commission on 2/12/2021 in terms of Article 323 of the Constitution of Republic of India for consultation of the Commission, the Commission wide letter dated so and so जो है इसमें has tendered and advised that the concerned authority record the reasons for her satisfaction in writing before invoking the provisions of the Article 311 2B. That is, it is not reasonably practicable to hold an inquiry and also justification for the punishment awarded. That is dismissal, removal or reduction. अध्यक्ष जी, मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर आई हूँ. इसमें आप मुझे ये बताइए अध्यक्ष जी, 3 चीजें हैं.
जिसके कारण जो है ये आप डिसमिस कर सकते हैं आर्टिकल 3112B में। प्रोवाइडेड, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई वेयर अ पर्सन इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच इज लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज। क्रिमिनल चार्ज मतलब जो कोर्ट से होके आया है तो वो अपने आप ही उसको तो रिमूव करेंगे ही, उसकी जरूरत नहीं है। Where the authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason to be recorded by that authority in writing, it is not reasonably practical to hold such an inquiry. और तीसरा है, where the president or the governor, as the case may be, is satisfied that in the interest of security of the state, it is not expedient to hold such an inquiry. अब अध्यक्ष जी, इसमें लिखा है, इनके अपने जो है ऑर्डर, डिसमिसल ऑर्डर के अंदर लिखते हैं वेयर, हाँ, ये लिखते हैं कि लेटर डेटेड सो एंड सो रिकॉर्ड्स रीजंस फॉर हिज हर सैटिस्फैक्शन इन राइटिंग बिफोर इन्वोकिंग प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 311(2)(b दैट इट इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकल टू होल्ड एन इंक्वायरी। अब मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, क्या अनिल नागर जी कोई टेररिस्ट हैं? क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जो क्या कहते हैं सरकार इतनी डर रही है? उनको जो है इस तरह का जो ये डिसमिसल ऑर्डर जो लिखकर दिया है, इसका मतलब तो सीधा है, ये सब जानते हैं कि कोर्ट के अंदर ये ऑर्डर होल्ड ही नहीं करेगा। कोर्ट से वो दोबारा से बहाल होकर बैकडोर एंट्री करके फिर दोबारा से आएंगे। तो इसका मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से सरकार के अंदर गोलमोल घोटाला हुआ है कि उसको बचाने के लिए अनिल नागर अपना मुंह ना खोल पाए, उसको ये रास्ता दिया गया है जिस तरह से ये पूरा करा है। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों आर्टिकल्स पढ़ के सुनाए हैं अध्यक्ष जी। तो आप मुझे ये बताइए, और उसके अंदर एक चीज और मजे की बात जो मैंने पढ़ी, कमाल की बात हो गई कि उसके डिसमिसल ऑर्डर में लिखते हैं कि आर्टिकल 320 के तहत उससे पूछा गया है कि भाई क्या बात हुई है सारी। अब मुझे ये बताओ, एचपीएससी के ऊपर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, सारा काम वहां पे हो रहा है, सारा गंदगी, सारा दलदल, सारा जो गंदगी है सारी की सारी वहां हो रही है, उन्हीं से आप पूछ रहे हो। वो अपने केस के अंदर खुद ही जज कैसे बन सकते हैं? मतलब क्या मखौल उड़ाया जा रहा है अध्यक्ष जी? इसका जो है जवाब जो है हमें दिया जाए कि खुद ही अपने आप ही कहते हैं, जब पूछ रहे हो खुद ही जज बन रहे हो, वो कह रहे हैं नहीं इसके अंदर इस तरह से कर दो। ये तो कमाल की बात होगी अध्यक्ष जी। आपको ये जो है, मैंने आपको ये पढ़ के बताया, ये कह रहे हैं matter was referred to the Haryana Public Service Commission on 2/12 in terms of Article 323 of the Constitution. तो कहने का मतलब ये है, how can a person be a judge in his own cause? जो आपके जो चेयरमैन हैं उन्हीं को आप जज बना के बिठा रहे हो, जिनके नीचे ये सारा का सारा गंद खाना हो रहा है। तो ये हालात जो है इसके अंदर आ गए अध्यक्ष जी। आगे अध्यक्ष जी, द यूथ ऑफ हरियाणा, आपने कहा था पढ़ने के लिए, इसलिए पढ़ रही नहीं तो मैं बोलती। द यूथ ऑफ हरियाणा अध्यक्ष जी, टुडे इज अ डिजेक्टेड एंड डिस्पोंडेंट लॉर्ड। 28 एग्जाम्स conducted previously by HSSC were cancelled due to paper leakage, including exams for the cadres of constables, naib tahsildars, gram sachivs and clerks, etc. In the light of the current revelations made in the latest SVB raids, it is clear that a new law brought by the government, that was Prevention of Unfair Means Act, पिछली बार जो हम लेकर आए थे, बड़े जोर शोर से ये डेस्क को थपथपाया था कि जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स का जो एक्ट लाए थे, दिस हैज प्रूव टू बी अ कंप्लीट आई वॉश। ये भी एक जुमला बन के रह गया है, क्योंकि इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। नाक तले अध्यक्ष जी, नाक तले दफ्तर के अंदर खुले आम अटैची आ रही हैं। तो आप समझिए, 3 मिनट रह गए। मैं पढ़ रही हूँ अध्यक्ष जी, मेरे को थोड़ा तो नीचे बोलने दो, आप पढ़ने से बाहर बोलने ही नहीं देते। नहीं बिल्कुल, आप ये खुले आम नाक तले अध्यक्ष जी दफ्तर के अंदर जब अटैचियां आ रही हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना खुला काम है। ये भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला जो है इस तरह से खुला हो रहा है। तो अध्यक्ष जी, दिस हैज प्रूव टू बी अ टोटल आई वॉश। द स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी स्टेप्स टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी और रिकॉन्स्टिट्यूट द प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, which are both namely HPSC and HSC.
Chairman HPSC, I'm sorry to say, I did not want to say it, but I have to bring this to forward. That Chairman HPSC has been Haryana CM's aide-de-camp for a long time. Now, we have to look back at how this government has pushed under the carpet the cash for jobs scam, which was unearthed on the 5th of April 2018. अध्यक्ष जी, मेरा कहने का मकसद ये कि जब इस तरह से जब सारी कार्रवाई होगी, सारा लीपापोती करी जाएगी, तो फिर क्या आगे निकलेगा? हमारा आज जो है नौजवान बच्चे हताश हैं, दुखी हैं। जो मेरिट पे जो बच्चा ईमानदारी से काम करता है, मेरिट पे उसको नौकरी नहीं मिलती। जो बच्चे, जो ग्रामीण अंचल का बच्चा, उसके माँ बाप अटैची कहां से लेकर दें? आज तक जो पेपर जो थे जिन्होंने दिए थे, कहां से वो पैसा आया, किसने दिया? वो अगर पैसा लगा ही नहीं तो वो कहां गया? तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो है लेखा जोखा हमारे को दीजिए। हम जानना चाहते हैं, हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं ये क्या है। अध्यक्ष जी, अभी रह गया एक पैराग्राफ तो रह गया, एक पैराग्राफ रह गया। So, Adhyaksh ji, in the end, I would like to say, desperate situations call for desperate measures. So, this thing is to maintain pristine purity of selection of process in public employment. It is very important to keep public faith in the system intact. If that public system is not intact, then what is the point if the faith is lost? Thank you. For this, the HPSC, let me finish. जो आपने दिया, जो मैंने दिया, वो तो फिनिश करना। तो ये तो हो गया, 15 मिनट हो गए। I'm just reading. Let me finish. To maintain, keep the public faith in the system intact. For this, the HPSC and SSC should be completely revamped by making the incumbent chairman and members of HPSC and SSC resign for failing to check the rot in the exams held on their watch, as brought out by the recent SVB raids. Matter should be probed by CBI SIT under the monitoring of a High Court judge, so that future selections of chairmen and members should also be done by a committee consisting of the Chief Minister, Leader of the Opposition and other members, and Chief Justice of the local High Court. तभी जो है इसका दूध का दूध, पानी का पानी होगा। नहीं तो जो 75% का जो वायदा करा था सरकार ने नौकरी देने का, वो तो जुमला साबित हुआ ही। अब जो है, जो 1 लाख नौकरी निलंबित पड़ी हुई है ये दोनों कमीशंस के अंदर, इसके अंदर अगर ये अटैची के साथ ही बात होगी तो नौजवान बच्चे हमारे कहां जाएंगे? कहां पूरा हरियाणा देख रहा है ये हाल क्या हो रहे हैं हमारे प्रदेश के अंदर, किस तरह से जो है हरियाणा के अंदर बच्चों को ठगा जा रहा है। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने आज ये एडजर्नमेंट मोशन जो आपने एडमिट करा उसका धन्यवाद। थैंक यू। आप अभी जवाब देंगे या लास्ट में देंगे जी? इनका जवाब देने के बाद हाँ बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सवाल मैंने पूछे हैं। हाँ, कोई नहीं, और बिल्कुल सीधे साधे, मैंने कोई लंबा चौड़ा नहीं पूछा, तो उसका जवाब मुझे चाहिए। अगर आप पहले जवाब देंगे फिर उसके लंबा, तो फिर प्रेसिडेंट और कन्वेंशन जो उन्होंने प्रस्ताव हाउस एक्सटेंड कर लेंगे। जब रूल में 2 से 6 है, स्पीकर साहब जब इनका जवाब आपको पहले देना होगा। तो अब क्या दिक्कत होगी हमारे को? बोलो, उसके बाद फिर डिस्कस। अध्यक्ष महोदय, हमारी आदरणीय बहन ने जो ये प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव में किरण चौधरी हमारी विधायिका ने बहुत से विषय उठाए हैं, बहुत से सीधे से आरोप भी लगाए हैं, लेकिन इन सब आरोपों का मुझे बिल्कुल चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो चिराग हूं, दुश्मनी मेरी अंधेरों से है, हवा तो यूं ही मेरे खिलाफ रहती है। मित्रों, अभी 2 संस्थाओं के बारे में और ये बात की गई है, 2 संस्थाओं के बारे में ये बात की गई है जिसमें हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग।
हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है ये संविधान की अनुच्छेद 315 के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। आयोग में ग्रुप ए और बी के पदों की भर्ती होती है। वर्तमान में आयोग के 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य नियुक्त हैं। आयोग के द्वारा भर्ती हेतु लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। आयोग के द्वारा आयोजित किसी भी लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में, यानी मैं आयोग की बात कर रहा हूं, सिर्फ उसमें लीक होने का कोई मामला नहीं आया है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि शिकायतों में पेपर लीक हुआ, वो जुडिशरी का इन्होंने नहीं कराया, वो जुडिशरी ने, हाई कोर्ट ने कराया। हाई कोर्ट ने कराया। पेपर में इसका भी हाथ होता है। मैं क्या कह रहा हूं, हाई कोर्ट ने कराया, हाई कोर्ट की देखरेख में हुआ, उस समय लीक हुआ था। और ये पिछले कई सालों से विषय चल रहा है कि इस पेपर को हाई कोर्ट कराए या एचपीएससी कराए। इस विवाद में लगभग 6 साल से तो हम लोग देख रहे हैं, हर बार हमें और जुडिशरी को कहना पड़ता है कि आप लोग पेपर कराइए। बीच मलिक साहब पहले जवाब दे लेने दो, फिर बाद में। लीक हुई, एचसीएस का तो ये लेता है एचपीएससी। देखिए, लीक होना और नकल होना और आउट होना, इन सब चीजों में अंतर है। मैं बता रहा हूं, वही जवाब दे रहा हूं। एक होता लीक होना, एक होता आउट होना, एक होता है कॉपिंग होना, नकल होना, एक होता है सीटर बैठाना, एक होता है सॉल्वर ने पेपर सॉल्व करके उनको पहुंचाना। ये सब चीजें अलग अलग हैं। लीक होने का मतलब होता है कि पेपर भी शुरू भी नहीं हुआ और उससे पहले ही उसके सारे पेपर और लीक हो गए, उसके उत्तर भी लीक हो गए। ऐसा एचसीएस का नहीं हुआ। एचसीएस की 2021 के 155 पदों के लिए विज्ञापन 26/2/21 को जारी किया गया था। 1,48,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 12/9/21 को 13 जिलों के 535 परीक्षा केंद्रों पर 75,402 लोगों ने इसमें परीक्षा दी थी। ये प्रारंभिक परीक्षा थी। इसका परिणाम आ गया। 2041 उम्मीदवारों को इस परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसी प्रकार दूसरी परीक्षा थी दंत चिकित्सक की। 81 पदों के लिए विज्ञापन 25/2/21 को जारी किया गया था। 7,891 उम्मीदवारों के आवेदन किया। लिखित परीक्षा का आयोजन 26/9/21 को हुआ। 29 परीक्षा केंद्रों पर 4,914 उम्मीदवार शामिल हुए। 10/11/21 को परिणाम हुआ। घोषित 220 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। हरियाणा सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2021, जो अभी हमने पिछले सत्र में बनाया, उसमें एक कंप्लेंट लिखी गई शिकायत पर, और शिकायत करने वाला एक नरेंद्र हिसार जिले का, उसने शिकायत की आरोप लगाया कि नवीन निवासी भिवानी हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों का चयन करवाने के लिए उसने पैसों की मांग की है। ये शिकायत की गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एक परिचित सोमवीर नाम के व्यक्ति का नाम दिया। उससे नवीन का संपर्क हुआ और नवीन ने प्रति उम्मीदवार 35 से 40 लाख रुपए राशि की मांग की थी, ये कहते हुए कि उम्मीदवार को किसी सांसद, विधायक या एचपीएससी के सदस्य से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये प्रिकॉशन उनकी बातचीत में आ रही है। सोमवीर ने अपने 2 उम्मीदवारों को परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयार किया। परीक्षा बाद नवीन ने सूचित किया कि उनमें से एक दलबीर जो है वो परीक्षा पास कर गया है, अन्य ने कई प्रश्न हल किए, इसलिए ओएमआर शीट में हेरफेर नहीं किया जा सका। चयन सूची में दलबीर का नाम आने के बाद नवीन ने पैसे देने की मांग की। सोमवीर ने नवीन के साथ 20 लाख रुपए की बातचीत की, लेकिन बातचीत को रिकॉर्ड किया। नरेंद्र ने राज्य चौकसी ब्यूरो से संपर्क किया और विजिलेंस द्वारा जाल बिछाकर नवीन पुत्र प्रदीप ग्राम कोट भिवानी को शिकायतकर्ता से 20 लाख रुपए लेते हुए पकड़ लिया। नवीन कुमार ने अनुसंधान के दौरान उसके कबूलनामे और प्राप्त अन्य सबूतों के आधार पर विजिलेंस के कर्मचारियों द्वारा अश्विनी शर्मा पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम जमालपुर जिला झज्जर को गिरफ्तार किया और उसके घर से 1,07,97,000 रुपए की राशि जब्त की।
अश्विनी शर्मा ने की गई विभिन्न पूछताछ में पता चला कि पैसों का भुगतान अनिल नागर एचसीएस उप सचिव हरियाणा लोक सेवा आयोग को किया जाना था। अश्विनी ने नागर से बात की, जिसने अपने एचपीएससी कार्यालय में पैसे पहुंचाने के लिए कहा। यह बातचीत रिकॉर्ड की गई और 18/11/21 को राज्य चौकसी ब्यूरो ने नागर को जब अश्विनी से अपने कार्यालय में पैसे ले रहा था तब उसको गिरफ्तार किया। नागर के आवास से 12 लाख रुपए की नगद तलाशी में जब्त किया गया। पूछताछ करने पर कबूल किया कि बाकी के पैसे अपने साथी आशीष गर्ग के पास रखे हुए हैं। उसके साथी ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए वहां से बरामद कराए। इस प्रकार अनुसंधान में अब तक कुल 3 करोड़ 50 लाख रुपए नगद जब्त किए जा चुके हैं। इसके बाद नागर के कब्जे से एचसीएस परीक्षा के रोल नंबरों की एक हस्तलिखित सूची बरामद की गई, जो सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर सहित थी। नागर ने कहा कि संदेह को टालने के लिए उन्होंने स्कैनिंग की शुद्धता को स्थापित करने के बहाने ओएमआर शीटों की रैंडम चेक करने के लिए कहा था। यह सुनिश्चित किया था कि सूची में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हों जिनके नंबरों में बदलाव किया गया था। तीनों आरोपियों से पूछताछ से पता चला कि इसमें 32 उम्मीदवार शामिल थे। ये कन्फेशन है उनकी। एचसीएस 15 उम्मीदवार, जिनमें से 5 पास हुए। डेंटल सर्जन 17 उम्मीदवार, जिनमें से 13 पास हुए। नागर ने सहमत उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं मंगाई थी और उत्तरों में बदलाव किया था, तब शीटों को पुनः स्कैन किया था। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि नागर ने एचसीएस प्रारंभिक और डेंटल सर्जन परीक्षाओं के लिए ओएमआर शीट की स्कैनिंग के लिए अश्विनी, जिसने पारू डेटा सॉल्यूस प्राइवेट लिमिटेड को काम पर रखा था, अश्विनी ने आगे नवीन से संपर्क किया, जिसने उम्मीदवारों से संपर्क किया। इन 3 मुख्य आरोपी व्यक्तियों की भूमिका पुष्टि मनी ट्रेल से होती है। उनके कब्जे से वह अपने द्वारा किसी अन्य के पास रखी हुई कुल 3.5 करोड़ की राशि जो बरामद हुई है। अनुसंधान से यह भी पता चला कि जो 2 परीक्षाएं उक्त मुकदमा अनुसंधान का विषय है, इनका कार्य अश्विनी शर्मा द्वारा संचालित कंपनी मैसेज पारू डेटा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था, न कि उस कंपनी द्वारा जिसके ऊपर ये बात चलाई जा रही है कि जसवीर सिंह द्वारा संचालित कंपनी मैसेज सेफ डॉट ई सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा। क्योंकि ये जो सेफ डॉट कंपनी है, इसको हटा दिया गया था और हटाने के बाद इससे कोई काम नहीं लिया गया, जिसके बारे में चर्चा पीछे इसमें लिखा गया है। ये दूसरी कंपनी है, वो अलग कंपनी थी। विजिलेंस द्वारा 22/11/21 को एचपीएससी अधिकारियों की उपस्थिति में एचपीएससी कार्यालय पंचकुला में आरोपी अनिल नागर एचसीएस के कार्यालय सहित सभी उपयुक्त स्थानों पर तलाशी ली। एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा और डेंटल सर्जन परीक्षा के संदिग्ध उम्मीदवारों को मूल ओएमआर शीटों में को कब्जे में लिया। एचपीएससी अधिकारियों द्वारा विजिलेंस टीम को सीसीटीवी फुटेज का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर व अन्य डिजिटल मीडिया भी उपलब्ध करवाए, जिन्होंने विजिलेंस द्वारा मांगे गए अन्य सभी रिकॉर्ड भी उपलब्ध करवाए हैं। सभी तीनों आरोपियों को 23/11/21 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभी डिसमिसल की ऑर्डर की बात हो रही है। अब ये ठीक है कि हमारी बहन जी एक बड़ी एडवोकेट हैं, तो इस नाते से उन शब्दों के अंदर इन्होंने कुछ चीजें निकाली होंगी, लेकिन हमारा कहना है कि इतना गंभीर आरोप किसी के ऊपर हो और उसके ऊपर उसको अगर हम डिसमिस कर देते हैं, तब तो ये प्रश्न उठता है कि डिसमिस क्यों कर दिया। एक्शन नहीं लेते हैं तो एक प्रश्न और उठाया जाता है कि अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया। एक्शन लेने में पहले उसको सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद जो हमें बताया गया है कि 311 के अंतर्गत ऐसे किसी भी कर्मचारी को जिसका अपराध अक्षम्य हो, उसको डिसमिस किया जा सकता है। तो इसलिए यह बहुत बड़ा अपराध था कि उस व्यक्ति ने और अपने यहां कार्यालय में पैसे मंगाए हैं। ये ना तो वो टेररिस्ट है, ना कोई उसके खिलाफ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ना उसके ऊपर कोई क्रिमिनल वो है, तो ये क्या नॉट प्रैक्टिकल का क्या मतलब हुआ? ये तो मतलब ये हुआ कि कोर्ट को बैकडोर का रास्ता, अब वो कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट से उसका स्टे मिलेगा। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि आप अनिल नागर की तरफ हैं या दूसरी तरफ हैं? आप किधर हैं?
कर रही हूँ। आप भी जानते हैं जब करप्शन सरकार को बर्दाश्त सरकार नहीं के किया पास जाएगा। अगर वो उससे पता चलता कि असली मगरमच्छ हैं कौन, असली मगरमच्छ भी जो मिले हैं आपने उनके खिलाफ उसको जो कार्रवाई है कर एक रहे हैं, रास्ता दे दिया ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। कार्रवाई कर रहे हैं और किसी आपने मगरमच्छ रास्ता से भी उसको बड़ा दिया कोई आ मुंह बंद जाएगा करने उसको का। छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप हमको जानकारी दे दें तब नहीं छोड़ेंगे, आप हमें ना दें, कहीं और कोर्ट में दे दें, सीबीआई में दे दें, पुलिस में दे दें, कहीं जानकारी दे दें, किसी व्यक्ति को जो दोषी पाया जाएगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। हम इंक्वायरी जब हमारे से इंक्वायरी नहीं होगी तब आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष हरियाणा लोक सेवा आयोग और सचिव हरियाणा लोक सेवा आयोग सहित एचपीएससी के कर्मचारियों को नियमित आधार पर अनुसंधान में शामिल किया जा रहा है। एचपीएससी से प्राप्त ओएमआर शीट और डिजिटल मीडिया को फोरेंसिक जांच के लिए एफएसएल भेजा जा चुका है। इसमें एक बात और जो स्पष्ट करनी है, एक प्रश्न भी है जिसका उत्तर मांगा गया है कि ये यानी डिप्टी सचिव, उप सचिव का ये कहां से आया। आपकी जानकारी के लिए रिकॉर्ड पर है, ये उप सचिव हमारे आने से पहले कांग्रेस सरकार में इसका पद सृजित किया गया था और पहला उप सचिव अमरजीत सिंह 21/2/14 को उसकी नियुक्ति हुई थी। 21/2/14 और आपके समय नहीं, वो हमारे समय में बाद में हटाया गया 7/7/15 को। दूसरा जो लगाया गया मनीष कुमार लोहान 2/11/16 को। तीसरा लगा है प्रद्युम्न सिंह 10/6/19 को और चौथा अनिल नागर 1/3/21 को। ये उप सचिव की पोस्ट हमने क्रिएट नहीं की है, ये उस समय कोई स्थिति पैदा हुई होगी कि उप सचिव की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अभी एचसीएस, ये सारे एचसीएस हैं, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, सारे एचसीएस है। पहला अमरजीत सिंह जो आजकल अभी गवर्नर हाउस में इस समय शायद ओएसडी है, क्या है, ओएसडी गवर्नर हाउस में है इस समय, ये लगे 21/2/14 को। और एचसीएस हैं 2011 के, यानी 3 साल पुराने ही थे। जो आपने कहा कि एकदम इतना नया क्यों लगाया, 2011 का था 14 में लगा, फिर मनीष लोहान 13 का था 16 में लगा, 3 साल ही पुराना था वो भी। फिर प्रद्युम्न सिंह भी 13 का था, ये 19 में उसके हटने के बाद उन्हें लगाया, और फिर ये 16 से 21 5 साल पुराना है ये। अभी अलग विषय है कि अनिल नागर कौन से बैच का था, उस बैच का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी आपने पूछा है, उसके बारे में बताऊंगा। वो इस बात का है, वो डिप्टी सेक्रेटरी लगा, पहले लगता रहे, डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट थी। सवाल इस बात का है, सवाल ये है कि सारा एग्जाम कंडक्ट करना उसको सेक्रेटरी की पावर होती है और चेयरमैन की, डिप्टी सेक्रेटरी को कैसे गई ये पावर? देखिए, जब कभी किसके ऑर्डर से गई, मैं बताता हूं, किसने किया, मैं बताता हूं, एचपीएससी का प्रस्ताव हुआ, बताता हूं, एचपीएससी प्रस्ताव करती है। नहीं, मैं बताता हूं, वो अकेला कोई प्रस्ताव नहीं करती, प्रस्ताव नहीं करती, प्रस्ताव नहीं करती, मैं बता रहा हूं ना, सुन तो लो। अब आप अपनी तरफ से बोले जाओगे थोड़ी पता लगेगा, सुन लो। ये चेयरमैन की उसके अधिकार क्षेत्र में है, तो उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वो सेक्रेटरी को या डिप्टी सेक्रेटरी को किसको काम देते हैं। एक बात, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चेयरमैन को ऐसी कोई सीक्रेसी ब्रांच की जो हैंडिंग ओवर होती है, वो फुल कमीशन का एक रेजोल्यूशन होता है। उस रेजोल्यूशन के अंदर सेक्रेटरी को एग्जामिनेशन और सीक्रेसी का इंचार्ज बनाया जाता है। चेयरमैन अगर है, आप कहते हैं कि चेयरमैन ने अकेले ऑर्डर किए, सब कुछ किए, तो ये सारे फिर एपिसोड में चेयरमैन ही इन्वॉल्व है। व्हाट एल्स इज लेफ्ट व्हेन चेयरमैन ही अकेला ऑर्डर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कमीशन नहीं कर रहा, सब कुछ है, फिर तो चेयरमैन उसमें इन्वॉल्व हो गया। का जो है ये जसबीर, जिसके वो एफआईआर जिसके खिलाफ करी गई है, वो भी चेयरमैन के काम से हुआ है। और किसने दिया है? नहीं, ये कंपनी को तो पहले निकाल दिया था, दोबारा इसको कैसे दिया? वो चेयरमैन ने दिया है। किरण जी प्लीज, अभी एक बार जरा माननीय हुड्डा साहब ने जो अभी बताया ना कि इसको डिप्टी सेक्रेटरी को क्यों पावर दे दी, सेक्रेटरी को कैसे नहीं दी, ये इसमें जवाब में ही आया हुआ है कि सेक्रेटरी का
ही इज कॉम्पिटेंट इनफ टू रिप्लाई। तो आप जवाब दे देंगे, हम सुन रहे हैं, जवाब में आएगा, देखेंगे, हमारे पास जवाब है। आप बीच में एक मिनट हुड्डा साहब, प्लीज उनको रिप्लाई कर लेने दें, फिर बीच में टोका टाकी ना करें। नहीं वो तो जो उनकी बात का कोई नया जवाब होता था आप बीच में टोका टाकी ना करें, मैं दे रहा हूं जब आपकी देखिए आखिर नहीं। सचिव और उप सचिव दोनों को ही चेयरमैन जो है, अब वो पद्धति इनको ज्यादा मालूम होगी क्योंकि ये स्वयं उसमें रहे हैं चेयरमैन। प्रस्ताव पारित करके देना है, रेजोल्यूशन पास करके देना, नहीं देना, क्या क्या नहीं, ये उनकी अपनी बुक्स में होगा। उसका कोई अलग से उल्लेख होता तो शायद उसकी जानकारी में ले आता। लेकिन जब भी सीक्रेसी का ये काम है, सेक्रेटरी को दिया जाता है या डिप्टी सेक्रेटरी को दिया जाता है, उनके काम बांटे जाते हैं। और खास करके तब जब कोई एक रिक्यूज कर जाए कि मेरा अपना परिवार का कोई सदस्य इस समय एग्जाम में बैठने वाला है, उस समय वो सीक्रेट काम उसको नहीं दिया जाता, फिर दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। और इस केस में यही है। इस केस में जो सचिव हैं, क्या नाम है सचिव, भूपेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि उनके परिवार का एक सदस्य वो HCS में एग्जाम देने वाला है, डेंटल सर्जन में भी देने वाला है, इसलिए ये दोनों एग्जाम मेरे पास ना रखे जाएं, ये आप उप सचिव को दें। अब ये कहीं रिकॉर्ड में है नहीं है, उसका डाटा जानकारी ली जा सकती है। हाँ, ये पहले भी होता है। जब सुनिए मैं जवाब भी देता हूं। सुनिए, जब भडाना जी जब चेयरमैन थे HPSC के, उनकी बेटी ने जब एग्जाम देना था उस समय उन्होंने रिक्यूज किया था, स्वयं चेयरमैन के नाते रिक्यूज किया था कि मैं इस समय चेयरमैन का भी पद नहीं। ये आपके जवाब में है उस समय, क्योंकि उस समय बहुत से आरोप लगे थे और उन आरोपों का जब अगर उल्लेख करूंगा 2013 का, तो उस 2013 में एक इतना बड़ा बाउंड्री खड़ा हुआ था कि उस समय लगभग 25 के आसपास ऐसे HCS लोग उसमें लगे थे कि जिनका पूरे का पूरा एक रिश्तेदारों के ऊपर वो सारा विषय आया हुआ है कि इसके रिश्तेदार हैं, ये इसके रिश्तेदार हैं। उस नाते से बताऊंगा, उस समय उनकी बेटी का जो विषय आया, उनका कि मैंने रिक्यूज इसलिए किया है कि मेरी बेटी एग्जाम दे रही है। ठीक है, वो HCS बन गई। हमारे तो अभी धर्मेंद्र, जिनके 2 परिवार के सदस्य दोनों एग्जाम में थे, वो बन भी नहीं पाए हैं। उसका प्रश्न अलग हो सकता है कि सेक्रेटरी खुद का बेटा परिवार का सदस्य नहीं बना है और जो चेयरमैन कभी रहा वो रिक्यूज कर गया तब भी बना है, हो सकता है अपनी योग्यता पर बना हो सकता है कई तरह के प्रश्न उसमें खड़े हुए हैं। तो मेरा ये कहना कि इसके अंदर हम अपनी भावनाओं पर जाएंगे कि भावना ये है कि उसके परिवार के सदस्य अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उस समय ये निर्णय हुआ कि उप सचिव को एग्जाम दिया जाए इसकी। और एक अगले जो 10 पद की बात कही जा रही है, इसके बाद एक विषय और आया है कि 10 पदों का जो रिकॉर्ड है वो उनको दिया गया। वो 10 पदों का रिकॉर्ड उप सचिव के पास नहीं है। 10 पद और आगे एक जगह शायद इसी में है आपके, या कोई एक आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा था कि 10 पदों का जिनका मांगा गया है सारा रिकॉर्ड, अगली जो परीक्षा दी गई है उसका रिकॉर्ड गुप्त यानी सीक्रेट जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है? वो उप सचिव के पास नहीं है। वो TCS ने एग्जाम कराया और बाद में वो सारा मार्क्स वगैरह जो सारे हैं वो सचिव के पास है। तो इसलिए ये सारी बातें करना, मैं उस क्रम से ही चलता हूं, उसी एक एक बात को लेकर के। HCS के साथ साथ डेंटल सर्जन परीक्षाओं में शामिल हुए जो संदिग्ध उम्मीदवार थे उनको सबको नोटिस भेजे गए हैं। उनमें से कुछ इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो चुके हैं और कुछ जो है अभी शामिल होने की प्रक्रिया में है। उनकी भूमिका का पता लगाया जा सके इसलिए सबको एक एक करके उस रिसर्च में बुलाया जाएगा। दोषी किस सीमा का तक ये दोषिता है इसका एक मूल्यांकन उसमें किया जाएगा। अभी ये सामने नहीं आया है कि आरोपी HPSC द्वारा आयोजित HCS प्रारंभिक और डेंटल सर्जन परीक्षाओं के अलावा किसी अन्य परीक्षा में गड़बड़ी करने में सफल रहे हो। मुकदमे के आगामी अनुसंधान के ऊपर ही निर्भर करता है, जानकारी मिलेगी कि और भी किसी परीक्षा में हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बात मैंने अगला बता ही दिया है कि आयोग में उपसचिव का पद 21/2/14 से स्वीकृत किया गया था। इस पद पर HCS अधिकारी सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते रहे हैं। प्रत्येक भर्ती से संबंधित गोपनीय कार्य अध्यक्ष के द्वारा कार्यभार को ध्यान में रखते हुए सचिव या उप सचिव में से किसी एक अधिकारी को सौंपा जाता है। अब वो सौंपने की प्रक्रिया क्या है, ये विषय आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और पहले भी जो उप सचिव हैं उनको
समय समय पर विभिन्न भर्तियों का गोपनीय कार्य सौंपा जाता रहा है, कोई पहली बार को दिया ऐसा नहीं है। ये जो एक्ट बनाया हमने सिविल सेवा कार्यकारी शाखा अन्य सहायक सेवाएं 2021 तथा HCS की परीक्षा और दंत चिकित्सा 2021 की भर्ती से संबंधित गोपनीय कार्य तत्कालीन उप सचिव को सौंपा गया। उक्त भर्तियों संबंधित गोपनीय कार्य सचिव को इसलिए नहीं सौंपा गया क्योंकि उनके पारिवारिक सदस्य इन भर्तियों में उम्मीदवार थे तथा उन्होंने पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के हित में गोपनीय कार्य उन्हें नहीं सौंपे गए। कॉन्फिडेंशियल वर्क ऑफ ये जो है ये वर्क रिलेटिंग टू इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर HCS में आपने ये कहा है द सर्विसेज ऑफ द सेड कंपनी वर डिसकंटिन्यूड ऑन द ग्राउंड दैट इट्स वर्क इज नॉट सैटिस्फैक्टरी एंड इट कॉजेज डिलेज इन अर्जेंट वर्क्स। मैंने एक प्रश्न ये पूछा, हाँ तो उनको हटा दिया गया उस कंपनी को। मैंने प्रश्न ये पूछा कि आप किसने इस कंपनी को दोबारा से लिया और क्यों लिया जब पहले इस कंपनी को हटा दिया गया था और फिर अब डिसकंटिन्यू करा गया, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी वो भी नहीं आपने बताया। देखिए वो कार्रवाई पहले वाली कार्रवाई को इससे जुड़ी हुई नहीं है, वो पहले के अलग कारण रहे होंगे जिसमें से उनको हटाया गया। उनको यानी परीक्षा के जो परिणाम आते थे देरी से आ रहे थे, दोबारा से जसवीर सिंह की कंपनी को नहीं दिया गया। आप चेक कर लीजिए, नहीं दिया गया, ये दूसरी कंपनी है। मैं कंपनी के नाम बता रहा हूं आपको। अध्यक्ष जी मैं पढ़ देती हूँ, मैं FIR पढ़ देती हूँ। FIR एक मिनट FIR में जो FIR में नाम लिखा हुआ है अध्यक्ष। वो FIR में जो किसी ने लिखवाया उसने लिख दिया। FIR कराने वाला शिकायत करता है, इसके बेसिस पे डिसमिसल दिया है। उसके FIR का पढ़ देती हूँ जी मैं तो कह रहा हूँ FIR तो जो शिकायतकर्ता कराएगा वही की जाएगी ना। और शिकायतकर्ता का मैंने नाम बता दिया कि शिकायतकर्ता कौन थे। अब जो FIR में लिखवाएगा उसको लिखना पड़ेगा। लिखा है जसबीर सिंह मलिक सॉफ्टवेयर गुड़गांव द्वारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की विभिन्न भर्तियों में धांधली करवाने के बारे में श्रीमान जी जसबीर सॉफ्टवेयर एजेंसी सेफ डॉट सोल्यूशन प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड पंचकुला को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑनलाइन अभी दोबारा से काम मिला है। वर्ष 2012-13 में भी कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस नेता के कारण, मैं पढ़ रही हूँ सारा, नहीं कांग्रेस का काम रखा गया था, वो ठीक लिखा हुआ दिया गया था। ये जो कंपनी है जसवीर सिंह की, ये कांग्रेस के टाइम पर रखी गई थी, इसने कई एजेंसी बना रखी है। उसमें लिखा है कई एजेंसी बना रखी है, एप्लीकेशन पोर्टल से लेकर करने के काम तक। तो यही है अध्यक्ष जी। सॉरी मैं कह रहा हूँ कि जिस कंपनी को 2012-13 में रखा गया उसको हटा दिया। अब ये दूसरी कंपनी है मैसेज पारू डेटा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आज कंपनी वो अलग है। किसी कंपनी का कोई रोल होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अगर इसके कंपनी के खिलाफ कोई बात होगी तो कार्रवाई निश्चित करेंगे, कहीं बख्शेंगे नहीं कोई भी नहीं। इसको एम्प्लॉय कैसे करा गया जब इसको पहले आप ही लोगों ने हटाया? नहीं उसको नहीं, दूसरा एम्प्लॉय कैसे करा गया? दूसरी कंपनी है, मैं कह रहा हूँ दूसरी कंपनी है। अब कंपनी किरण चौधरी एंड को हो जाए और दूसरा हो जाए किरण एंड को, ऐसे थोड़ा होता है। ये तथ्यों की बात है। CM साहब ये बात देखिए, ये तय तक हमारे को जाना चाहिए। इसमें बहुत अहम कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। कौन ऐसे ये फिर आप कहोगे टाइम हो गया, फिर ऐसे बाद में कहोगे टाइम हो गया, ये ऐसे जाएंगे। जवाब देने दो ना उनको, हम बाद में आप जाएंगे। नहीं जो आपने वो जवाब दे रहे हैं बीच में जाएंगे और उन तथ्यों बाद में मुझे मत कहना कि आपने बोलने नहीं दिया। हो तो टेबल पर रखो। केवल ये कहना कि एक कंपनी थी दूसरी शायद कंपनी वही ना हो, उसी का कोई आदमी ना हो। सरकार ने तो मैंने तो बता दिया, मैंने उत्तर बता दिया वो कंपनी अलग है, वो कंपनी अलग है। जब मैंने बात बता दी कि वो कंपनी अलग है, वो कंपनी अलग है, आप कहते नहीं सेम है तो उसका कोई तथ्य लाओ। देखिए बहुत सी ये जो जहां तक कंपनियों का बाहरी एजेंसी का विषय होता है, सब परीक्षाओं में हमने लिखित में दिया है कि लिखित परीक्षाओं के आयोजन में बहुत सी गतिविधियां होती हैं। आयोग में उपलब्ध स्टाफ और संरचना भर्तियों को समयबद्ध तरीके से करने के लिए कुछ गतिविधियां बाहरी एजेंसियों से करवाई जाती हैं और ये हम ही करा रहे हैं ऐसा नहीं है, सब जगह होती हैं। 2014 से भी पहले से चल रही हैं और इसमें लोक सेवा आयोग, भर्ती एजेंसियां, विश्वविद्यालय इस तरह की सेवाएं बाहरी एजेंसियों से हमेशा लेती रही हैं। दूसरे विभागों में भी बहुत सी सेवाएं ऐसी हैं और जिनकी एजेंसियों से ये सेवाएं ली जाती हैं। आयोग के द्वारा हरियाणा सिविल सर्विस तथा अन्य सहायक सेवाएं
दंत चिकित्सक 2021 की भर्ती संविदा आवेदन पत्र मांगने का कार्य किसी मैसेज safe.e सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से नहीं करवाया गया है। लिखित जवाब में दिया है कि उससे नहीं कराया गया। पूर्व में मैसेज safe.24/4/13 से ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगने से संबंधित कार्य दिया गया था। तत्पश्चात 3/9/19 के द्वारा उक्त कंपनी की सेवाएं लेना इस आधार पर बंद कर दिया था कि उसका कार्य संतोषजनक नहीं है और वह तत्काल कार्यों से देरी कर रही है। और ये जो सारे विषय हैं 3/9/19 के बाद के हैं, जो आज के हैं। कराएंगे ना, मैं तो कह रहा हूं कराएंगे। अरे मैंने कह दिया कराएंगे, इसके ऊपर और क्या है। आप तो जबरदस्ती जोड़ रहे, हम कराएंगे। होगा जोड़ तो ठीक है, नहीं होगा तो खिलाफ कार्रवाई होगी। अलग है तो अलग है। नहीं, बाकायदा इसमें जो उत्तर है वो लिखा है, ये उत्तर लिखा है इसमें। किरण जी, हमने ये उत्तर ऐसे दिया, तो बहस आपको नहीं बेकार पूरी लगता तो होगी। आप ये ऐसे बेकार नहीं है, मानो। ये तो बिल्कुल आप तो बेकार मानो। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। बाकियों को भी बोलना, फिर बाद में आप लोग ही कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। 21/12/21 से 27/12/21 तक जिन 10 पदों के लिए दस्तावेजों की जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया गया है, उनका गोपनीय कार्य तत्कालीन उप सचिव को नहीं सौंपा गया। इन 10 पदों का रिकॉर्ड भी उप सचिव के पास नहीं था। ये जो मैं उत्तर दे रहा था वो ये है कि जो आप लोगों ने इसमें कहा कि 10 पदों के दस्तावेज की जांच स्कैनिंग एजेंसी की ब्लैकलिस्ट करने तथा उक्त दोनों लिखित परीक्षाओं के बारे आयोग के द्वारा हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो से आगामी रिपोर्ट सूचना प्राप्त होने पर निर्णय किया जाएगा। जहां तक हरियाणा लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का संबंध है, उनकी नियुक्ति भारत के संविधान अनुच्छेद 316 के अंतर्गत की जाती है। इसलिए ये जो जांच है इसमें बाकायदा लिखित परीक्षाओं के आयोजन पर अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है। जहां तक हरियाणा कर्मचारी आयोग का संबंध है, एवीबी ने कोई जांच नहीं की है। आयोग द्वारा एचएसबीबी को कोई दस्तावेज ओएमआर शीट नहीं दी गई। हालांकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दिनांक 16/7/21 से 26/9/21 की अवधि के दौरान हुई परीक्षाओं में उम्मीदवारों द्वारा खाली छोड़ी गई ओएमआर शीट्स की एक सूची स्वयं तैयार की है और वह सूची पुलिस महानिदेशक हरियाणा को मामले के जांच के लिए भेजी गई थी। उन उम्मीदवारों के विभिन्न पदों के लिए परीक्षा के दौरान अपनी ओएमआर शीट खाली क्यों छोड़ी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें एक प्रश्न में शामिल हुए बिना उम्मीदवार को अपनी ओएमआर शीट खाली रखने के लिए गुमराह करने वाले व्यक्ति कौन शामिल हैं। लगभग 54 ऐसे केसेस उनको दिए हैं कि इनकी ओएमआर शीट खाली छोड़ी गई है। डीजीपी अपने तरीके से उन चीजों पर कर रहे हैं, रिसर्च यानी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिर उन लोगों को किसने कहा खाली छोड़ने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से कि इनमें से इन लोगों को क्यों छोड़ा। हालांकि जिन्होंने खाली छोड़ा है इनको सबको रिजेक्ट कर दिया गया, कोई इसमें परीक्षा में किसी को लाभ नहीं मिला, लेकिन खाली छोड़ने का कारण क्या है इसकी भी तह तक हम जाएंगे। आखिर कोई उनको भरोसा देता है, अन्यथा परीक्षा देने के लिए कोई जाएगा, 100 अंक हैं, 100 में से 10, 20, 30 कुछ तो करके आएगा। जो बिल्कुल खाली छोड़ेगा इसका मतलब उसकी इंटेंशन कुछ और है। आप जवाब तो देने दें ना एक बारी, आप जवाब तो देने दें। आप सुने तो सही। उम्मीदवारों द्वारा भाई जो जवाब देंगे, आपको जवाब सुनना है। नहीं क्या नहीं, जो फैक्ट है वो दिया हूं मैं। जो बातें आपने इसमें लिखी हैं एक एक का उसका जवाब दे रहा हूं मैं। आपने ओएमआर शीट पूछा, उसमें ओएमआर शीट के जवाब दे रहा हूं। आपने उप सचिव की नियुक्ति की बात पूछी, जी बैठिए। दे रहा हूं। आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे इसका यह अर्थ नहीं है। गीता जी बैठे आप, मैं कह रहा हूं बैठे। आप कुछ भी अगर कहते रहेंगे इसका यह अर्थ नहीं है कि उस चीज को वैसे ही मानते चले जाएंगे। हम हर बात को जवाब के बाद आपने जो कुछ पूछना उस समय पूछें आप। नहीं आपका विषय लंबा है इसलिए जवाब भी लंबे ही होंगे ना उसके। आपने 24 प्रश्न पूछे, 24 प्रश्नों के 24 उत्तर तो आएंगे ही। और अभी तो इसमें जब आपके बाद में सवाल खड़े होंगे उस समय उसका जवाब देंगे, वो अलग है, वो अलग आएंगे।
उम्मीदवारों द्वारा खाली ओएमआर शीट छोड़ने के संबंध में समाचार आने के बाद उसी के साथ साथ प्रतिरूपण इंपर्सोनेशन के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन सभी शिकायतों की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। हालांकि घटना के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के प्रतिरूपण को रोकने के साथ साथ उम्मीदवारों द्वारा ओएमआर शीट को खाली छोड़ने के उपाय किए गए हैं। खाली छोड़ने उठाए गए कदमों की सूची निम्न प्रकार है। ये मैं नहीं पढ़ रहा, जो हमने उसमें जो कुछ उपाय किए हैं वो क्योंकि बहुत लंबा है, इसलिए उसको आप लोगों को लिखित में दे दिया गया है। तो सारा HSSC का जितना भी उत्तर है वो लिखित में दिया है। जो हमने उपाय किए हैं, ओएमआर शीट्स को खाली ना छोड़ें, छोड़ के जाए तो कैसे उसकी चेकिंग करेंगे, सीसीटीवी कैमराज हैं, थंब इम्प्रेशंस हैं और फोटो है, और उसको बाहर और अंदर